اس لیول کا اقرار کرنے والا پیدا ہو گیا ہے جو خدا کی ذات نے مجھے جس شان سے نوازا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس ظہور سے مجھے نوازا ہے، اس لیول کا اقرار کرنے والا آج پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آج ولی ہوا ہوں۔ تو کیا یہ مراتب ختم ہو گئے؟ کیا یہ مہربانیاں ختم ہو گئی؟ کیا یہ وہاں تک محدود تک آتا؟ کیا یہ وہاں بند ہو گیا؟ یہ کیا اس کو بریک لگ گئی وہاں پر؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ امام محمد مہدی علیہ السلام تک یہ کھاتا چلنا ہے اور کسی نہ کسی کے ذریعے چلنا ہے۔ جس کو چاہے گا وہ اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، جس سے چاہے گا وہ اپنا کام لے گا، اور جس سے جیسا لینا چاہے گا ویسا لے گا۔ بھلے کسی کو مرتبہ بھی دے دے، بھلے کسی کو مقام بھی دے دے، بھلے کسی کو قریب بھی کر لے، لیکن کام پھر بھی جس کے حصے میں جو آنا ہے وہ اسی کے حصے میں آئے گا۔ ہر کسی کے حصے میں ایک جیسا کام نہیں آتا۔ یہ شروع سے نہیں آیا، جب پہلے نہیں آیا تو آج کہاں سے آنا ہے؟ لیکن راستے سب کے لیے کھلے ہیں، منزل سب کے لیے ایک جیسی ہے، راستے سب کے لیے ایک جیسے ہیں، اور اس کی گواہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ منزل سب کے لیے ایک جیسی ہے، راستے سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب کو تعلیم ایک جیسی عطا ہوتی ہے، سب کو شکل برزخ کی تعلیم ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس سلسلہ عالیہ میں بیعت ہونے کے بعد کسی کو شکل برزخ کی تعلیم نہیں ہے؟ بے شک سب کو ہے، لیکن اگر میں نے اس کو پایا ہی نہیں ہے تو اس میں اس تعلیم کا کیا قصور ہے؟ مجدد پاک نے تو فرما دیا کہ شکل برزخ جب کرو گے چند روز خود بخود ہو جاؤ گے برزخ فروز۔ آج جس چیز کو تلاش کر رہے ہو نا کل بانٹنے لگ جاؤ، آج جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو نا کل بانٹنے لگ جاؤ گے چند روز۔ اب یہ ہمارے لیے غور کا موقع ہے کہ ہمیں تو کئی سال ہو گئے شکل برزخ کرتے ہوئے، ہمیں تو 10 سال 20 سال ہو گئے شکل برزخ کرتے ہوئے، تو ابھی تو ہم بانٹنے والے بنے ہی نہیں ہیں، ہم تو ابھی ڈھونڈنے والوں میں ہمارا شمار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ہم نے اپنا لیول وہاں تک نہیں لے کر گئے جہاں تک لے جانا چاہیے۔ ہم مسافر ضرور ہیں اس راستے کے، لیکن جس لیول جس طرح سے سفر کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، جس طرح منزلوں کی طرف جانا چاہیے اس طرح سے نہیں جا پا رہے، جتنی تڑپ جتنی حب جتنا شوق درکار ہے اتنا نہیں دے پا رہے، جتنی قربانی درکار ہے اتنی نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجہ سے جہاں پہنچنا ہے وہاں نہیں پہنچ پا رہے۔ مسافر ضرور ہے، اسی راستے کے مسافر ہیں، اور کچھ چمک دمک اس راستے کی ہم نے دیکھی بھی ہے، یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے چمک دمک نہیں دیکھی، ہم نے اس راستے کی چمک دمک بھی دیکھی ہے، لیکن وہ چمک دمک جو ہے وہ اس منزل کے اختتام کی علامت تو نہیں ہے، وہ تو آغاز ہے، وہ تو روشنی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ شہر آ رہا ہے، لیکن ابھی شہر آیا تو نہیں، ابھی شہر میں داخل تو نہیں ہوئے، ابھی تو دیکھا تو نہیں کہ شہر میں کیا کیا کچھ ہے، اب تو دور سے روشنیاں دیکھی ہیں کہ بھائی روشنی، یہ بھی روشنی وہاں جل رہی ہے، یہ بھی جل رہی ہے، یہ بھی جل رہی ہے، یہ بھی جل رہی ہے، دور سے روشنیاں دیکھی۔ تو اس راستے کی چمک دمک ہم نے دیکھی ہے، لیکن جو اس کی حقیقی روح ہے، بات اس حقیقی روح کی ہو رہی ہے کہ جب تک اس حقیقی روح تک نہیں پہنچیں گے تب تک جو بننا ہے وہ نہیں بنیں گے، جب تک اس حقیقی روح تک نہیں پہنچیں گے تب تک باقی امتوں پر سردار نہیں بنیں گے، جب تک اس حقیقی روح تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہمارا مرتبہ اور مقام جو ہے باقی امتوں پر فضیلت والا نہیں ہوگا۔ اس پر ہمارا فضیلت کی واحد وجہ جو ہے یہ نقطہ ہے جس کو نقطہ توحید کہا جاتا ہے، کہ جب بندہ سفر کرتے کرتے اس راہ میں سفر کرتے کرتے جس کو توحید یعنی وحدانیت کہا جاتا ہے، وحدانیت کہا جاتا ہے، اس میں سفر کرتے کرتے خود بھی واحد نہ ہو جائے، اس راستے میں سفر کرتے کرتے خود بھی واحد نہ ہو جائے تب تک اس کی معراج نہیں ہوگی، خود بھی واحد نہ ہو جائے تب تک اس کی معراج نہیں ملتی، جب تک یہ کہتے نا کہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ بہت بڑا لفظ ہے، زبان سے ادا ہو رہا ہے، اللہ جانے کیوں ادا ہو رہا ہے، اللہ نصیب کرے، شاید اللہ کس کا نصیب کرے، کہ جب تک یہ کہتے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ جہاں پہنچ کے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، تب تک وہ ذات نہیں ملتی۔ اور اس کی دلیل مخدوم علاؤدین علی احمد صاحب القدیری فرما رہے ہیں، آپ مہربانی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا،
در بادشاہ وحدت، در بادشاہ وحدت، وہ وحدت کا در ہے. کثرت کجا بگنجت، کثرت وہاں کیسے جا سکتی، کثرت واحد کیسے ہو سکتی؟ سوال بھی آپ کر رہے ہیں، نیچے اگلی لائن میں جواب بھی آپ کو دے رہے ہیں. اب در بادشاہ وحدت کثرت کجا بگنجت، ازدہ ہزار عالم یکساں شدست مارا. کہ وحدت کثرت جب بنتی ہے جب ساری کثرت میں اسے وحدت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، کہ جب اسے ہر روپ میں ایک ہی روپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر روپ میں ایک ہی روپ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ ہر صورت وچ وسدا، ہر صورت وچ وسدا میرا ڈولا ماہی، بھید انوکھے دسدا میرا ڈولا ماہی. کہ جب ہر صورت میں وہ صورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ مقام طے ہوتا ہے جہاں کثرت جو ہے وحدت کے دروازے میں داخل ہوتی ہے، کثرت وحدت کے دروازے میں داخل ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ در بادشاہ وحدت کثرت کجا بگنجت ازدہ ہزار عالم، یعنی جتنی بھی کائنات ہے اوپر سے لے کے نیچے تک یکساں شدست مارا، جب مجھے ایک جیسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ مرتبہ طے ہوتا ہے. اور پھر آگے آپ وہ فرماتے ہیں جس نقطے کی ہم بات کر چکے ہیں کہ کہہ دے تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، کہتا جا چڑھتا جا، کہتا جا چڑھتا جا، آخر وہاں پہنچ جائے گا کہ جا جا کر کہنا پڑ جائے گا کہ میرے سوا. اور آپ فرماتے ہیں کہ بسیار سیر کردم بت خانہ جہاں را، کہ میں نے تمام عبادت خانوں کی سیر کی ہے. کیونکہ اس مقام پر جو چلے گئے جس کی بات ہو رہی ہے، جو گیا وہ تو بتائے گا نا بھائی. میں نے آپ کو مثال نہیں دی، جو لاہور گیا وہ تو کہے گا میں لاہور میں ہوں بھائی، اور جو لاہور میں اس کو اجازت نہیں ہے کہنے کی کہ میں لاہور میں ہوں. تو مخدوم پاک جس مقام پر گئے وہ نہیں کہیں گے کہ میں وہاں پر ہوں، تو کہنا پڑے گا آپ کو. آپ نے فرمایا بسیار سیر کردم بت خانہ جہاں را، میں نے سارے عبادت خانوں کی سیر کی ہے، اور سارے عبادت خانوں کی سیر کر کے میرا فتویٰ یہ ہے کہ آئین خود پرستی، آئین خود پرستی ایمان شدست مارا، جو اپنے آپ کو ماننے کا قانون ہے. یہ نہیں آپ فرما رہے کہ میں مان رہا ہوں، آپ فرما قانون ہے، جو قانون جو ہے وحدانیت کا، توحید کا، نقطہ توحید کا جو قانون چلا آ رہا ہے، اس قانون کی روح سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آئین خود پرستی ایمان شدست مارا. تو ہم بھی اسی مخدوم علاء الدین علی احمد ساگر کلیری کے خادم ہیں، اسی کے جو ہے نالین اٹھانے والے ہیں، اسی کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا داری میں بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا داری میں الجھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں، مختلف قسم کے شیطانی چکروں میں پھنس جاتے ہیں، اور ان تمام چکروں میں پھنس کے اپنے حقیقی مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. تو سال بعد عرس مبارک جو درویشوں نے یہ ریت چلائی ہے، یہ جو دستور چلایا ہے درویشوں نے، اس دستور کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سال کی غلطیاں معاف ہو جائیں، ہمارے پورے سال کی خطائیں معاف ہو جائیں، ہمارے پورے سال کی جن الجھنوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر محبت اور خلوص کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو ان ساری الجھنوں سے نکل جائیں گے. اگر جن شیطانی چکروں میں پھنس گئے ہیں، اگر محبت خلوص کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو ان شیطانی چکروں سے نکل آئیں گے، نفسانی چکروں سے نکل آئیں گے. مختلف قسم کی رکاوٹیں جو ہمارے آگے حائل ہیں، وہ رکاوٹیں اس موقع کے طفیل دور ہو جائیں گی. تو عرس مبارک ہر قسم کی نعمتوں کو پانے کا ذریعہ ہے، اور سال بعد درویشوں کی مہربانی سے یہ موقع ہمارے پاس آتا ہے کہ ہر قسم کی رنجشیں ختم ہوتی ہیں اگر ہماری نیت صاف ہو، ہر قسم کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت صاف ہو، ہر قسم کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اگر ہماری نیت صاف ہو، ہر قسم کے مرتبے طے ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت صاف ہو، ہر قسم کے مراتب عیاں ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت صاف ہو. اسی کے لیے آج کی یہ محفل پاک ہے کہ ہمارا عرس پاک جو ہے جس کی تاریخ 24 جمادی الثانی اور 7 جنوری الحمدللہ جو ہے وہ طے ہے، اور آج تقریباً 20-21 دن ہمارے عرس مبارک میں رہ گئے ہیں. اور یہ 20-21 دن جس تیزی سے گزریں گے ہمیں شاید خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہمیں بھی پتا ہے. تو مختصراً یہ کہ عرس مبارک ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے. اپنی نیتوں کو جگا لیں، اپنے کام سارے ہو جاتے ہیں، کام کوئی نہیں رکتا ہے. اللہ کام کرنے والے
बदलता रहता है। आज हम ये काम कर रहे हैं, कल हमारी जगह कोई और कर रहे होंगे, कल कोई और कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, कल को हमारी जगह कोई और कर रहा होगा। तो 1400 साल से सिस्टम चला आ रहा है, तो हमने नहीं बनाया, हमने नहीं चलाया। ना सिस्टम को हम चला सकते हैं, ना हमारी औकात है, ना हमारी हैसियत है। ये तो जिस पर रहम करता है उसे इसका हिस्सा बना देता है, जिस पर रहम करता है उससे खर्च करा लेता है, जिस पर रहम करता है उससे जानी माली तौर पर अपने आप को हाजिर करा लेता है। ये तो उसकी मेहरबानी है, ये हमारी करतूत नहीं है कि अगर हम ये समझें कि मेरी वजह से इस निज़ाम को कुछ जो है वो मेरी वजह से चलता है या मेरी वजह से निज़ाम चलेगा। ये निज़ाम रसूल खुदा का निज़ाम है, ये काम इस निज़ाम को रसूल अल्लाह चलाते हैं। इसका आज मैं बना हूं, इसका कल कोई और बन जाएगा, परसों को और बनेगा, तरसों को और बन जाएगा, लेकिन ये निज़ाम इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम तक चलेगा। और ये बिशारत रसूल है कि विलायत जो है ये इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम तक जिंदा रहेगी। और जिस सिलसिला आलिया में बरज़ख की तालीम है, वो सिलसिला आलिया पूरी आबोताब के साथ चमकता रहेगा। और बिशारत है बाबा साहब की कि सिलसिला साबरी आलिया क़यामत तक शादो आबाद रहेगा। सिलसिला साबरी आलिया क़यामत तक शादो आबाद रहेगा। तो ये सिलसिला शादो आबाद रहेगा, ये फलता फूलता रहेगा। आज हम इसका हिस्सा, कल कोई और हो जाएगा। आज हम इसमें अपनी तवानाइयां सर्व कर रहे हैं, कल कोई और कर लेगा। लेकिन जो मौका हमारे पास है उसका फायदा हमने उठाना है, उसका फायदा किसी और ने नहीं उठाना। वो मौका अल्लाह ने हमें दिया है। अगर वो मौका किसी भी वजह से हमसे मिस हो जाता है, किसी भी वजह से वो मौका हमसे जाया हो जाता है, किसी भी वजह से हम उस मौके से गाफिल हो जाते हैं, तो फिर महरूम तो हम रह गए ना। आने वाले तो शायद अल्लाह जाने क्या पाएं क्या ना पाएं, वो उनका नसीब है। लेकिन हमसे तो मौका मिस हो गया, हम तो रह गए पीछे। हम तो जानते हुए भी अनजान बन गए, हम तो पूछते हुए भी जो है नासमझ बन गए, हम तो खबर रखते हुए भी बेखबर बन गए, हमें बताया भी गया लेकिन हम फिर जो है लाशऊर बन गए। तो अल्लाह की बारगाह से खालिस्तन रहम मांगने का वक्त है, खालिस्तन रहम मांगने का वक्त है। नफ्सा नफ्सी का दौर है, फितनों का दौर है, कदम कदम पर नफ्सा नफ्सी है, कदम कदम पर फितने हैं, कदम कदम पर जो है वो नफसानियत है, कदम कदम पर शैतानियत है, कदम कदम पर माशरती बुराइयां हैं। इन सारी चीज़ों से बचकर अपने मकसद की तरफ राग़िब रहना उन्हीं लोगों का शेवा है जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने इस मंज़िल मक़सूद के लिए अहल बनाया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे इस रास्ते के मुसाफिर हैं, लेकिन हम अहल जब बनेंगे जब हम अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। जब तक हम अपने पेशवा के दिए हुए तरीक़े कार को पूरे तौर पर अपनाएंगे नहीं, तब तक इन नेमतों तक रसाई हासिल कर नहीं सकते। मुजद्दिद पाक ने बड़ी खूबसूरत मेहरबानी फरमाई है। क्या फरमाते हैं कि शगले बरज़ख जब करोगे चंद रोज़, खुद ब खुद हो जाओगे बरज़ख फरोज़। अगली मंजिल क्या है? क्या फरमाते हैं कि जबकि शगले अजब में आओगे, जबकि शगले अजब में आओगे आपको खुद आप मुर्शिद पाओगे। जबकि शगले अजब में आओगे आपको खुद आप मुर्शिद पाओगे। और जब करोगे तुम ये शगले अजीब, जब करोगे तुम ये शगले अजीब, यक ब यक मिल जाएगा तुमको अजीब। तो मंजिल हमसे दूर नहीं है। जब खुदा की जात ने हमें ये कह दिया कि मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा करीब हूँ, तो मंजिल तो हमसे दूर नहीं है। लेकिन हमने अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी कायली की वजह से, दुनियादारी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने की वजह से, दुनियादारी के मसाइल में मुब्तला होने की वजह से, दुनियादारी की उलझनों में फंसने की वजह से हमने अपने करीब वाली मंजिल को भी दूर 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 कर लिया कि वो हमारे लिए पहाड़ बन गई है। वो करीब होते हुए हमारे लिए वो पहाड़ बन गई वो मंजिल। और कई साल तक वाबस्ता रहने के बावजूद हमें जहाँ होना चाहिए हम वहाँ पर नहीं है, हमें जो बनना चाहिए हम वो नहीं बन पाए हैं। लेकिन ये सारी गुफ्तगू आज की इसी वजह से है कि अल्लाह करे कि अब भी अल्लाह हमारा शऊर जगा दे, अब भी अल्लाह हमें अपनी गलतियों पर काबू पाने का मौका दे दे। और अब भी अल्लाह ताला हमारी खताएं जो हमसे दानिस्ता सरदद हुई, गैर दानिस्ता सरदद हुई, अल्लाह हमारी खताएं माफ़ फरमा के अब भी अल्लाह ताला हमारे अंदर वो शऊर पैदा कर दे, वो शौक़ पैदा कर दे, वो लगन पैदा कर दे, वो जज्बा पैदा कर दे कि जिसकी रूह से हम भी अपने आप को इन मकामात की सैर के काबिल बना सके, जिसकी रूह से हम भी अपनी रूह को इस काबिल बना सके कि हमारी रूह इस काबिल हो जाए कि उन मकामात तक जा सके। क्योंकि जब तक आपकी रूह इतनी पावर में नहीं होगी तो कहाँ से जाएगी? जब तक आपकी रूह जो है वो आपके वजूद के अंदर सोई पड़ी है तो वो कहाँ से सफ़र करेगी? जब तक रूह सुस्त है,
वो कहाँ से सफर करेगी? जब तक रूह काहिल है वो कहाँ से सफर करेगी? तो शक्ल बरज़क की रूह से अपनी रूह को मजबूत करो, अपनी सोई हुई रूह को शक्ल बरज़क से जगाओ, अपनी सोई हुई रूह को शक्ल बरज़क की खुराक दो। शक्ल बरज़क की खुराक से ये रूह जागेगी, शक्ल बरज़क की रूह की खुराक से ये रूह ताकत पकड़ेगी, शक्ल बरज़क की खुराक से ये रूह इतनी पावर में आएगी कि ये आपके वजूद से बाहर निकलेगी, ये इतनी पावर में आएगी कि अल्लाह ताला इसको ताकत बख्शेगा कि आज ये अजमेर में आपकी रूह, कल जो है वो आपकी रूह जो है बगदाद में होगी, परसों आपकी रूह नजफ में होगी, तरसों आपकी रूह मदीना मुनव्वरा में होगी और उसके बाद आपकी रूह अर्श मौला पर होगी। ये आपकी रूह को ताकत मिलेगी, लेकिन इस ताकत के लिए जो वाहिद नुस्खा है वो शक्ल बरज़क है। जब तक शक्ल बरज़क से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक शक्ल बरज़क की कदर नहीं करोगे, जब तक शक्ल बरज़क को पूरा नहीं समझोगे, जब तक इसको पूरा वक्त नहीं दोगे, तब तक जो बात बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। हज़रत पाक फरमाते हैं कि शक्ल बरज़क खूब तर है ए अजीज, शक्ल बरज़क खूब तर है ए अजीज, इसलिए महबूब तर है ए अजीज। शक्ल बरज़क खूब तर है ए अजीज, इसलिए महबूब तर है ए अजीज। शक्ल बरज़क को ना छोड़ो रात दिन, शक्ल बरज़क को ना छोड़ो रात दिन, इस शक्ल से मुंह ना मोड़ो रात दिन। शक्ल बरज़क को ना छोड़ो रात दिन, इस शक्ल से मुंह ना मोड़ो रात दिन। कोई दिन में बाखुदा हो जाओगे, कोई दिन में बाखुदा हो जाओगे, पीरो मुर्शिद खल्क के कहलाओगे। कोई दिन में बाखुदा हो जाओगे, पीरो मुर्शिद खल्क के कहलाओगे। पाओगे तुम भी इमामत का मकाम, पाओगे तुम भी इमामत का मकाम, पाओगे तुम भी कदामत का मकाम, और जिंदगी जागीर अपनी पाओगे। तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारी अपनी हुक्मरानी होगी कि जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो चाहोगे वो ज़हूर में आ जाएगा, अपनी हुक्मरानी होगी तुम्हारी जिंदगी पर। आप फरमाते हैं जिंदगी जागीर अपनी पाओगे और खुल्द को तामीर अपनी पाओगे। जन्नत पर भी तुम्हारी मर्जी होगी कि जिस जगह जाना चाहो, जिस तरह से जाना चाहो, तुम्हें इख्तियार हो जाएगा। और इसके पीछे बात क्या है? शक्ल बरज़क। जिंदगी जागीर अपनी पाओगे, खुल्द को तामीर अपनी पाओगे। सैयदे अबरार के दरबार से, अहमद मुख्तार की सरकार से, सैयदे अबरार के दरबार से, अहमद मुख्तार की सरकार से रुतबा गौसी व कुतबी पाओगे, रुतबा गौसी व कुतबी पाओगे। बादशाह दो जहां हो जाओगे, रुतबा गौसी व कुतबी पाओगे, बादशाह दो जहां हो जाओगे। आप लिखते लिखते जब इस मकाम पर पहुंचे, आप फरमान लगे कि बस हसन, बस अब कलम को थाम लो, बस हसन, बस अब कलम को थाम लो, खामा मानी रकम को थाम लो। बाज आओ इस बड़ी गुफ्तार से, बाज आओ किस्सा बसियार से। आपने यहाँ कर दिया, आपने बता दी सारी बात क्या है। अब नसीब हमारा है कि हम उसको किस तरह से पाने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। अब फरमाते हैं बात जो सच्ची थी कह दी साफ साफ, तुम इसे सच्ची समझ लो या कदा, तुम्हारी मर्जी है। हमने तुम्हें बता दिया कि बात क्या है। तो बात यह है कि आका दो जहां से लेकर आज तक पूरी फ़कीरी लाइन का मुताला कर ले। पूरी फ़कीरी लाइन मुर्शिद के गिर्द घूमती है, सारी मुर्शिद के गिर्द घूमती है। जिस शहनशाह की भी तिलावत करके देख ले, जिस शहनशाह की भी बात करके देख ले, उसकी बात अपने मुर्शिद के गिर्द ही घूमती है। आया गुलाम फरीद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि तो बकर उमर उस्मान आया, कि कहीं अबू बकर के रूप में आया, कहीं उस्मान के रूप में, किते असदुल्ला दिशान आया, कहीं मौला कायनात के रूप में जलवागर हुआ, किते बकर उमर उस्मान आया, किते असदुल्ला दिशान आया, किते हसन हुसैन इमाम बने, सुल्ताना सिर्फ सुल्तान आया, बड़ फखरुद्दीन जहान आया। कि मेरे लिए वो फखरुद्दीन का जहान बनकर आया है। कि वो जो महवे सफ़र है, कि जैसे एक बहुत खूबसूरत शेर भाई ने लिखा है कि मदीने से नजफ, बगदाद से कलियत और अब मुल्तान। मदीने से नजफ, बगदाद से कलियत और अब मुल्तान, वही नूर खुदा महवे सफ़र है। गौर से देखो,
बात सारी गौर से देखने में है। जो गौर से देखेगा वो पालेगा, जो नहीं देखेगा उसके लिए खैर ही सारी। वो बाबुल्ले शाह फरमाते हैं कि गल समझ ली तो रौला की, गल समझ ली तो रौला की है, राम रहीम ते मौला की। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका इस उर्स पाक की रहमतों के तुफैल, सबसे बड़ी बात उर्स को होते इसीलिए तो भाई उसको भेजे पकाने का नाम नहीं है कि लंगर दर्ज पका लिया तो उर्स बड़ा हो गया आपका जी, या जो आपने कॉल बड़े बुला लिए तो उर्स बड़ा हो गया जी आपका, या जी आपने लाइटिंग बड़ी कर ली तो उर्स बड़ा हो गया। यानी कि बहुत हैवी खर्च करने से उर्स बड़ा नहीं होता, या उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद है सोई रूहों को जगाना, उसका मकसद है रूह की तरबियत करना, उसका मकसद है खताओं की माफी देना, उसका मकसद है गलतियों पर काबू पाना, उसका मकसद है कि आपकी रूह फिर से तरोताजा होकर इस सफर के काबिल हो सके। ये उस मुबारक का मकसद है। आज की गुफ्तगू इसी मकसद के लिए कि अल्लाह हमारी रूहों को तो जगाए। जिस शहनशाह की दावत करने जा रहे हैं पहले उसको देखने की अहलियत तो अपने अंदर पैदा कर ले, पहले अपने अंदर वो शौक, वो जज्बा, वो लगन तो पैदा कर ले, फिर ही वो नजर आएगा। वरना तो महफिल में भी सोए रहेंगे, जो आज सोए वो महफिल में भी सोए रहेंगे। तो अल्लाह करे कि हम आज जाग जाएं ताकि महफिल में भी जागे रहें। और जो महफिल की रौनकें हैं, महफिल के तसर्रुफात हैं, जो महफिल में लम्हात आते हैं, अल्लाह करे कि सब का सब हमारा नसीब हो। अल्लाह ताला हमारी पूरी जमात साबरिया आलिया जो यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं, नहीं मौजूद, अल्लाह ताला पूरी जमात साबरिया आलिया को आबाद रखे, सलामत रखे, शाद रखे। अल्लाह गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, बेशियाँ हर इंसान से हो जाती है। अल्लाह ताला हमारी जमात में, तमाम जमात में जिस गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, मुझ समेत अल्लाह सबकी माफ़ फरमाए अपने हबीब का सदका। और अल्लाह ताला बाकी जो जिंदगी है कोई नहीं पता किसी को कितनी है, कोई नहीं पता कितनी है, कोई नहीं दावा कर सकता कि जिंदगी कितनी है। जितनी भी है अल्लाह करे कि अब जो है इसको जाया ना करे, जितनी जाया होगी इसी की अल्लाह से माफी मांग ले, बहुत है, बहुत है, अल्लाह इसी की माफी दे दे। तो बकिया मानदा जो जिंदगी है खुदा करे कि इस मकसद को पाने के लिए जो तवानाई दरकार है वो तवानाई पैदा करें, जो हुब दरकार है वो हुब पैदा करो, जो शौक दरकार है वो शौक पैदा करो, जो लगन दरकार है वो लगन पैदा करो, ताकि जो नेमत तुम्हारे नसीब में खुदा ने कर दी है उस नेमत तक आपको रसाई नसीब हो, आपको आशनाई नसीब हो। उस वक्त तक नहीं होगी नसीब जब तक ये सारे काम नहीं करोगे। तो बात यह है कि मुर्शिद को न ताबेदारी की हाजत होती है, अल्लाह माफ करे, जो हाजत रखता है उसकी बड़ी सख्त पकड़ है अल्लाह के बारगाह में। उसे ताबेदारी की हाजत मुर्शिद को नहीं होनी चाहिए। मुर्शिद को नहीं हाजत होनी चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे, मुर्शिद को नहीं हाजत होनी चाहिए कि कोई मेरी खिदमत करे, मुर्शिद को ये हाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरे फरमान पर लबैक कहे, मुर्शिद को ये हाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई मुझ पर कुर्बान हो, नहीं होनी चाहिए। वो ये सारी चीज़ें आपके फायदे के लिए कहता है और ये कहनी है उसने, क्योंकि ये उसी की ड्यूटी है। उसने आपको बार बार झिझोड़ते रहना, बार बार बताते रहना कि तेरा मकसद ये नहीं है, तेरा मकसद ये नहीं है, ताकि शायद किसी मौके पर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और तेरा शऊर जाग जाए और तुझे पता चल जाए कि यार वाकई मेरा मकसद तो असल ये था, मैं भूला ही फिर रहा था, मैं भटका ही फिर रहा था, मैं किसी और चीज़ को अपना मकसद समझ बैठा था, मैं किसी और ख्वाहिशात में मुब्तला हो गया था। मेरे लिए तो खुदा की ज़ात ने जो रास्ता चुना है इससे अजीम तो कोई रास्ता ही नहीं है, इससे अजीम तो कोई मंजिल ही नहीं है, इससे अजीम तो कोई हकीकत ही नहीं है जो खुदा की ज़ात ने मेरे लिए चुनी है। तो पेशवा का काम है बार बार झंझोड़ना, पेशवा का काम है बार बार आगाह करना, बार बार बताना कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन उसे खुद इसकी कोई आदत नहीं है। अगर कोई मोहब्बत नहीं करेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, कोई ताबेदारी नहीं करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, कोई कुर्बान नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, लेकिन फ़र्क उसको पड़ना है। जिस तरह बच्चे के स्कूल ना जाने से उस्ताद को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क बच्चे को पड़ना, इसी तरह पेशवा के पास ना जाने से फ़र्क पेशवा को नहीं पड़ना, फ़र्क मुरीद को पड़ना। पेशवा के तरीक़ेकार पर ना चलने से फ़र्क पेशवा को नहीं पड़ना, मुरीद को पड़ना। पेशवा से मोहब्बत ऊंचे दर्जे की ना करने से पीछे पेशवा ने नहीं होना, पीछे मुरीद ने रह जाना। पेशवा की बात पर लबैक ना कहने से पेशवा ने नहीं पीछे हो जाना, मुरीद ने पीछे हो जाना। पेशवा की ज़ात और बात को समझकर, बूझकर, जानकर अपना तन मन धन लुटाने से पेशवा ने नहीं आगे चले जाना, मुरीद ने आगे जाना। तो ये जितना भी खेल है खुदा की ज़ात ने बंदे की रहबरी के लिए, बंदे की बेहतरी के लिए सजाया है, सारा का सारा बंदे को ज़ात तक ले जाने के लिए ये सारा खेल रचाया है। और इस खेल को चलाने के लिए एक रहबरी का जहान रचाया है जिसकी जिम्मेदारी जो है अहले रिसालत के सुपुर्द थी।
फिर विलायत के सुपुर्द है। रिसालत ने भी यही पैगाम अपने मानने वालों को दिया है और विलायत भी यही पैगाम अपने मानने वालों को देती है। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी गलतियां कोताहियां माफ़ फरमाए और हमें भरपूर अंदाज में इस उर्स मुबारक की तैयारियों की तौफीक अता फरमाए। तमाम तर जोश, तमाम तर जज्बा, तमाम तर लगन जो है उसके साथ अल्लाह ताला में उस पाक को मनाने की तौफीक अता फरमाए। 7 जनवरी हमारे उर्स पाक की तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उर्स पाक की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि शुरू से ही हमारा ये तरीक़ेकार रहा है कि हम लोग जब उर्स पाक की तारीख लेने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय मालिक के फजल के, कुछ हाथ में नहीं होता और उसके फजल का सहारा लेते हुए उस पाक की तारीख ले ली जाती है और उसके फजल का सहारा लेते हुए तैयारियों का आगाज़ कर लिया जाता है इस यकीन के साथ कि नीयत हमने करनी है, फजल उसने करना है, रास्ते उसने खोलने, मेहरबानियाँ उसने करनी है। उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक की तारीख का भी ऐलान हो गया और उस पाक के कामों का भी आगाज़ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कवाल साहिबान से भी जो है वो तारीख जो है वो तय कर ली और दोस्तों को बता भी दिया गया कि 2 पार्टियां जो है हमारे उस मुबारक की महफिल पाक में सनाखानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। जो गुज़िश्ता 1 साल पहले भी पार्टियां जो है वो दोनों दे के जा चुकी हैं। एक पार्टी हमारे हैदराबाद की है जो हमारे उनमें से 2 सिलसिला दाखिल भी हैं, तो वो हमारे घर के अफराद हैं, तो उनकी ड्यूटी तो लाजमी बनती है। तो गुलाम अब्बास साबरी और एहसान साबरी वो है और उसके बाद नजफ अली और अदनान अली फैसलाबाद से ये हमारे जो है सना खान है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने कोशिश करनी है भरपूर अंदाज में इस महफिल पाक को सजाने की और अपने मेहमान जो भी इस उर्स मुबारक में शिरकत के लिए अपने शहर से आएंगे, शहर से बाहर जहाँ जहाँ से भी आएंगे, कवाल साहिबान आएंगे, तो हमने भरपूर तरीके से उनकी खिदमत करनी है क्योंकि सारे के सारे हमारे सरकार के मेहमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जुमला हमारा अक्सर व बेशतर हम अपनी जमात को गोशगुजार करते रहते हैं कि हर जमात का फ़र्द ये समझ ले कि मैं इस दावत का मेज़बान हूँ। ये दावत बादशाह दो जहाँ की है और मैं इसका मेज़बान हूँ। जब बंदे को ये पता चल जाता है तो मेज़बान मैं हूँ, तो फिर उसका भागदौड़ करने को भी दिल करता है, फिर उसको जिम्मेदारी का भी एहसास होता है, फिर उसे पता होता है कि यार ये काम मैंने करने। लेकिन जब तबीयत में बेफिक्री होती है, उसे ये ख्याल नहीं होता कि मेज़बान मैं हूँ, तो फिर ये होता है कि हर काम को उन्होंने करने, वो खुद ही करते रहेंगे, मैं टाइम पे चला जाऊँगा, खैर है कोई बात नहीं, काम तो सारे उन्होंने करने। तो फिर क्या है, काम तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो इनाम मेरे हिस्से में आना होगा मैं उससे रह जाऊँगा। तो पेशवा नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है किसी इनाम से पीछे रह जाए। इसी वजह से वो सबके लिए यकसा रास्ते खोलता है, यकसा बात सबको बताता है, यकसा पैगाम सबको देता है और यकसा मौका सबके लिए होता है कि जो जितना भी रूहानियत में अपने आप को आगे ले जाना चाहता है उसके लिए मौका होता है कि वो अपने आप को ले जाए। तो हमने भरपूर अंदाज में हमारी जमात साबरी आलिया ने इस उर्स पाक को जो है वो सजाना है और भरपूर अंदाज में इस उर्स मुबारक की तैयारियां जो है हमारी जमात ने जो वो करनी है। इंशाअल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो तीसरा काम है, पहला काम तो उर्स पाक की तारीख है वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा काम तो आप साहिबान का है वो भी हो चुका है, तीसरा काम हमारा जो है हमने अपने उर्स मुबारक के लिए जो वो हाल बुक किया है, जो है फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शादी हाल भी जो है 7 जनवरी के लिए बुक हो चुका है, 7 जनवरी के लिए बुक हो चुका है। अभी तक हमारी तमाम तर तैयारियां जो है 7 जनवरी के लिए हैं, लेकिन हमारी जमात जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेशवाई तरीक़ेकार भी है कि हमारी जमात जो है 2 रोज़ महफिल कराती है कि पहली महफिल रात को होती है, दूसरी महफिल दिन को होती है। रात की महफिल के तसर्रुफ़ात अलहदा है, दिन की महफिल के तसर्रुफ़ात अलहदा है। जो रात की महफिल के तसर्रुफ़ात है वो रात को हासिल होते हैं, जो दिन की महफिल के तसर्रुफ़ात है वो दिन को हासिल होते हैं। तो नियत तो होती है कि रात की महफिल के भी तसर्रुफ़ात नसीब हो जाएं और दिन की महफिल के भी तसर्रुफ़ात नसीब हो जाएं, लेकिन चूँकि वसाइल की हद में रह के सारा काम करना होता है। अभी तक अगले जुम्मे तक, चूँकि हमने 20 तारीख तमाम दोस्तों को दे रखी है, अगले जुम्मे को 22 तारीख होगी दिसंबर की, तो अगले जुम्मे तक जो हमारे पास लंगर जमा होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आया सुबह वाली महफिल कब भी करानी है या नहीं करानी। फिलहाल हमारी तमाम तक तैयारियां रात वाली महफिल की हैं। अगर अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा और हमें वसाइल दे देगा तो फिर हम सुबह वाली महफिल पे करा लेंगे, वरना हम रात वाली महफिल की तैयारी की
भरपूर अंदाज में कोशिश भी कर रहे हैं, अल्लाह से मदद भी मांग रहे हैं, रहम भी मांग रहे हैं। अगले जुम्मे तक तमाम दोस्त जो हमारी जमात से वाबस्ता है, जो मौजूद है या नहीं मौजूद, उन तक भी पैगाम पहुँच जाए कि अगले जुम्मे तक अपना अपना लंगर जो भी अपनी खुशी और शौक़ से अपनी रूहानी तरक्की के हवाले से जो दोस्त जिस अंदाज में भी उसकी राह में खर्च करना चाहता है, किसी पर कोई बोझ नहीं है, किसी पर कोई वज़न नहीं है, अपने शौक़ से जो जिस तरह भी खर्च करना चाहता है वो अपने आप को अगले जुम्मे तक जो है वो पेश कर दे, ताकि हम अपने प्रोग्राम को तमाम मामलात को अपनी शक्ल देते हुए भरपूर अंदाज से इसकी तैयारियां भी करें। और इस तमाम तर मामलों क्योंकि अगले जुम्मे के बाद हमारे पास टोटल दिन 12 रह जाएंगे, तो 12 दिन जो है वो तैयारियों के हतमी दिन होते हैं, तो उसमें तो हर मामले को हतमी शक्ल देना होती है कि जी ये काम ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। तो कोशिश करें तमाम दोस्त कि अगले जुम्मे तक जो है तमाम दोस्त अपना अपना लंगर जो भी जिस अंदाज में भी पेश होना चाहता है, फिर सुनने किसी पर कोई बोझ नहीं है, किसी पर कोई वज़न नहीं है, अपने रूहानी मरातब के हवाले से, अपनी रूहानी तरबियत के हवाले से, अपने रूहानी मुश्किलात के हल के हवाले से, अपनी रुकावटें रूहानी दूर करने के हवाले से, अपने रूहानी मरतबे बुलंद करने के हवाले से जिस दोस्त का जो भी शौक़ है, जो भी लगन है, अपने अपने शौक़ के मुताबिक खुद पेश हो जाए। और हम सिर्फ दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला सबका पेश होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारी पूरी जमात जिस शौक़ और लगन के साथ इस महफिल पाक को सजाती आई है, और बहुत सारी बातें हम यहाँ नहीं करते, लेकिन कभी कभी यहाँ हो भी जाती हैं कि उस शौक़ और जज्बे का पूरे जहान में चर्चा है, न सिर्फ इस जहान में चर्चा बल्कि उस जहान में भी चर्चा है। और ये चर्चा याद रखेंगे ना तो पैसे से होता है, ना ये पैसे से होता है, ना ये और किसी वजह से होता है। ये खालिसन जब मालिक राज़ी होता है तो जब भी होता है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जमात पर राज़ी है और इस वजह से राज़ी है कि हम अपने मालिक का काम मिलजुल कर करते हैं और अपने मालिक के काम में पूरी यकसुई के साथ, पूरी नीयत के साथ जो है वो पूरी जमात शामिल हो जाती है और पूरी जमात अपने आप को मेज़बान तस्वर करते हुए उस महफिल पाक की तैयारियां करती है। और इसी का समर हमें ये मिला है कि हमारी जमात जो है मालिकों की बारगाह में मकबूल हुई है। अल्लाह करे कि समर बरकरार रहे, हमारी किसी भी कमी गलती कोताही की वजह से इसमें कोई कमी ना आ जाए भाई। अल्लाह करे कि हमारा शौक़ बरकरार रहे ताकि उसका समर बरकरार रहे, हमारी नीयतें बरकरार रहे ताकि उसका समर बरकरार रहे, हमारा शौक़ बरकरार रहे ताकि उसका दिया हुआ चर्चा बरकरार रहे। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।